اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 گنہگار عورتیں۔ پہلی عورت کے عذاب کا سبب بے پردگی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ نے عرض کیا کہ ابا جان، عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ ان کے کون سے ایسے اعمال تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس ہولناک اور دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا؟ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور اس کا دماغ ہنڈیاں کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ بے پردگی کی وجہ سے عذاب جہنم۔ جہنم میں عورتوں پر عذاب دیکھنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سی حدیثیں میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ نکلنے کے سلسلے میں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا۔ پھر فرمایا، عورتوں کو جہنم میں کثرت سے جانے کی 4 وجہیں ہیں۔ نمبر 1، ایک وجہ یہ ہے کہ ان میں اللہ کی اطاعت کا مادہ بہت کم ہے۔ نمبر 2، دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا جذبہ کم ہے۔ نمبر 3، تیسری وجہ یہ ہے کہ ان میں اپنے خاوند کی فرمانبرداری بہت کم ہے۔ نمبر 4، چوتھی وجہ یہ ہے ان کے اندر بن ٹھن کر بے پردہ گھر سے باہر نکلنے کا جذبہ بہت پایا جاتا ہے۔ یہ چوتھی وجہ وہی ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اکثر خواتین جب باہر نکلیں گی تو خوب اعلیٰ جوڑا پہن کر اور خوب آراستہ پیراستہ ہو کر میک اپ کر کے خوشبو لگا کر بے پردہ باہر نکلیں گی۔ اگر کوئی خاتون مکمل شرعی پردے میں گھر سے باہر نکلے اور ایسی خوشبو لگا کر نہ نکلے جس کی خوشبو دوسرے نامحرم مردوں تک جائے، یا جو آرائش و زیبائش کے ساتھ صرف اپنے شوہر کے سامنے آئے اور اپنے باپ، بھائی اور بیٹے کے سامنے آئے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ شوہر کے لیے جو آرائش و زیبائش ہوتی ہے وہ کسی بھی نامحرم ہو یا گھر کے باہر ہو، ان کے سامنے ہی فعل گناہ حرام اور ناجائز ہے، جس سے بچنا واجب ہے۔ دوسری عورت پر عذاب۔ دوسری، زبان درازی۔ دوسری عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ زبان کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی منہ پھٹ، زبان دراز، بدگو اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتی ہے، اور یہ بات تو مردوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے یا پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ بات باعث عذاب اور باعث بوال ہے، لیکن اس حدیث میں یہ صفت خاص عورتوں کے متعلق بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا اور بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا جس سے شوہر کا دل دکھے، اس کو تکلیف اور ایذا پہنچے، ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ وہ جہنم میں زبان کے بل لٹکیں گی۔ زبان درازی سنگین گناہ ہے۔ اگر انسان کسی کو ہاتھ سے مار دے یا کسی چیز سے مار دے، اس کی تکلیف زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتی، لیکن زبان سے بعض اوقات انسان ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ جو زندگی بھر انسان کو نہیں بھولتا۔ زبان کا جسم تو بہت چھوٹا ہے مگر اس کے گناہ بڑے سنگین ہیں۔ ان سنگین گناہوں میں سے ایک گناہ زبان درازی ہے۔ یہ ایسا سنگین گناہ ہے کہ جو عورت کے سارے سکون غارت کر دیتا ہے
और ज़िंदगी को अजीरन बना देता है। अगर इसका सबब किसी खातून की ज़बान है तो उसके लिए इस हदीस में यह अजाब और बवाल बयान किया गया है। इसलिए ख़वातीन को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वह ज़बान से कोई ऐसा कलमा न निकाले जिससे उनके शोहर को कोई तकलीफ़ पहुँचे। ऐसे ही शोहरों की यह जिम्मेदारी है कि वह भी अपनी ज़बान से ऐसी बात न कहे जिससे बीवी को तकलीफ़ पहुँचे, बल्कि तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों को यह हुक्म है कि वह अपनी ज़बान पर काबू रखे और ज़बान से ऐसी बात निकालना जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे बाइसे अजाब है और गुनाह है, और किसी मुसलमान को नाहक तकलीफ़ पहुँचाना भी गुनाह है। तीसरी औरत पर अजाब का सबब नाजायज़ ताल्लुकात। तीसरी औरत जिसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा वह अपनी छातियों के बल लटकी हुई है। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह वह औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज़ ताल्लुकात रखती थी। शरीफ और बहाया औरतें तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती, इसी तरह शरीफ और बहाया मर्द भी इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन जिस मुआशरे में हया का खात्मा हो चुका हो और बेहयाई का दौरा हो उसमें इस बात को कहाँ ऐब समझा जाएगा, बल्कि ऐसे मुआशरे में इसको फैशन के तौर पर इख्तियार कर लिया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल हयाउ शुबतु मिनल ईमानी, हया ईमान की शाख है, यानी दीन और ईमान का एक अहम शोबा हया है। यह हया ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत से गुनाहों से बचा लेती है। चुनांचे जिनसी नौईयत के जितने गुनाह हैं उन सब में हया एक पर्दा और रुकावट बन जाती है। इसी हया की वजह से इंसान गैर मरहम औरतों की तरफ नज़र नहीं उठा सकता। किसी नामरहम के पास जाने और उसके पास तन्हाई में बैठने से हया उस इंसान को रोके रखेगी। इसी तरह अगर औरत हयादार है तो वह हया को उसको नामरहम मर्द की तरफ देखने से रोकेगी, और यह हया ही दरअसल बाप और बेटी के दरमियान, भाई और बहन के दरमियान, ससुर और बहू के दरमियान है। खुदा न ख्वास्ता अगर किसी जगह पर किसी वक्त इस हया का खात्मा हो गया तो फिर बेटी और अजनबी औरत बराबर हैं। चौथी औरत पर अजाब का सबब नमाज का इस्तेहज़ा। चौथी औरत जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि उसके दोनों पैर सीने से बंधे हुए हैं और दोनों हाथ सर से बंधे हुए हैं, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह वह औरत है जो दुनिया में जनाबत और हैज से पाक साफ रहने का एहतमाम नहीं करती थी और नमाज के साथ बड़ी लापरवाही बल्कि इस्तेहज़ा का मामला करती थी। अजाब का सबब नमाज का इस्तेहज़ा। इस अजाब की तीसरी वजह जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई वह नमाज का इस्तेहज़ा और मजाक उड़ाना है और नमाज को मामूली समझकर उसकी तरफ से लापरवाही करना है। इस मामले में हमारे आम मर्दों और औरतों का तकरीबन यकसा हाल है। चुनाचे जितने नौजवान हैं अमूमन उनके अंदर नमाज का एहतमाम नहीं, न लड़कियों और न लड़कों में। इसी तरह आज़ाद मुंस औरतों में भी नमाज का एहतमाम नहीं, और अगर उनसे नमाज के बारे में कहा जाए तो ऐसे तरीके से जवाब दिया जाता है कि जिससे ऐसा मालूम होता है कि उनकी नज़र में नमाज कोई ज़रूरी काम ही नहीं। हालांकि शादी या गमी किसी भी मौके पर नमाज छोड़ना जायज़ नहीं। आजकल की तकरीबात में देखिए, उनमें किसी तरह लड़कों, लड़कियों, मर्दों और औरतों की नमाजें बर्बाद होती है और ऐसी तकरीबात दर हकीकत बवाल है। अल्लाह ताला बचाए, आमीन। माहवारी से पाकी फ़ौरन गुस्ल करे। इसी तरह माहवारी के मामले में भी यह हुक्म है कि जो ही तहारत हो जाए और पाकी की अलामत पाई जाए और उस वक्त अगर किसी नमाज का भी वक्त है और इम्कान यह है कि अगर जल्दी से गुस्ल कर लिया जाए तो वक्त निकलने से कम अल्लाह अकबर कहने का वक्त मिल जाएगा तो उस वक्त की नमाज फ़र्ज हो जाएगी। इसलिए उस वक्त यह हुक्म है कि फ़ौरन जल्दी से जल्दी गुस्ल करके नमाज पढ़े, और अगर इससे ज़्यादा वक्त मिले तो फिर
बतरीके ओला नमाज फ़र्ज हो जाएगी। मसलन नमाज का वक्त ख़त्म होने में 1 घंटा बाकी है और पाकी की अलामत मौजूद है तो वह फ़ौरन गुस्ल करके नमाज पढ़े। लेकिन आजकल ख़वातीन में यह मर्ज़ आम है कि उस वक्त को लापरवाही में गुजार देती हैं। चुनाचे अगर रात को ईशा के बाद पाक हो गई तो सारी रात बग़ैर गुस्ल के नापाकी की हालत में गुजार देंगी। हालांकि सुबह सादिक से पहले गुस्ल करके ईशा की नमाज पढ़ना उन पर फ़र्ज हो चुकी है, इसलिए ऐसी सूरत में उनको चाहिए कि गुस्ल करके पाक साफ़ हो जाएं और नमाज अदा करें। हज़रत सहाबियात का आखिरत की फ़िक्र की वजह से यह हाल था कि वह रात को बार बार उठकर चिराग जलाकर देखा करती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तहारत हो चुकी हो और नमाज फ़र्ज हो चुकी हो और फिर हमारी नमाज कज़ा हो जाए। आजकल तो चिराग जलाने की ज़हमत भी नहीं है, सिर्फ बटन दबाने की देर है जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बावजूद उसके अंदर लापरवाही करने और कहीं नमाज़ें ज़ाय करने का यह अजाब और बवाल है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बयान फरमाया, लिहाजा जनाबत और माहवारी के मामले में बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। इसकी वजह से हमारी कोई नमाज कज़ा न हो पाए और आम हालत में भी नमाज कज़ा करने से ज़रूर बचना है। 5वीं खातून पर अजाब का सबब चुगली। 5वीं खातून जिसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह है और सांप बिच्छू उसको लपेटे हुए हैं, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह वह औरत थी जिसको झूठ बोलने और चुगली खाने की वजह से अजाब हो रहा था। आप हजरात जानते हैं कि यह दोनों गुनाह औरतों के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि अगर मर्दों के अंदर भी यह गुनाह पाए जाएंगे तो उनकी भी पकड़ होगी और उन पर भी अजाब। गीबत और चुगली में फ़र्क, एक गुनाह है गीबत और एक गुनाह है चुगली। यह दोनों हराम है, दोनों से बचना ज़रूरी है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। गीबत उसे कहते हैं कि किसी के पीठ पीछे उसकी इस तरह बुराई करना कि अगर उसको मालूम हो जाए तो वह उसको नापसंद करे। मसलन किसी शख्स में कोई ऐब है, हम दूसरों को जाकर बता रहे हैं कि फ़लाँ शख्स में यह ऐब है, उसका नाम गीबत है। लेकिन अगर हम किसी शख्स की बुराई उसकी पीठ पीछे इस नीयत से करें कि दोनों में लड़ाई हो, बदगुमानी और ना इत्तिफाकी पैदा हो, उसको चुगली कहते हैं और चुगली का गुनाह गीबत से बढ़कर है। इसलिए गीबत में सिर्फ दूसरों की बुराई मकसूद होती है, लेकिन चुगली में तो बुराई के अलावा यह भी मकसूद है कि उन दोनों के दरमियान लड़ाई और उन दोनों के दरमियान जो दोस्ती और मोहब्बत और ताल्लुक़ है वह ख़त्म हो जाए। मसलन सास ने बहू की बातें ससुर के सामने या उसके शोहर के सामने लगाई। अब शोहर बीवी से खफा हो रहा है और ससुर भी बहू के बदगुमान हो रहा है। यह चुगली है और हराम है और आजकल यह मसला आम और हर घर का मसला है। यह घराना जो सास, बहू, ससुर और शोहर उन 4 अफराद पर मुश्तमिल है, इसकी वजह से घर का निज़ाम दरहम बरहम हो गया, घर का सुकून गारत हो गया और आखिरत में भी उस पर बड़ा अजाब और अजाब का सबब झूठ बोलना। इस चुगली के साथ दूसरा गुनाह जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, झूठ बोलना। आप हजरात जानते हैं कि झूठ बोलना कितना बड़ा कबीरा गुनाह है और चुगली के अंदर झूठ को होना लाजमी है, इसलिए झूठ के बगैर चुगली कैसे चलेगी। और जिस तरह आज हमारे मुआशरे में चुगली आम है, इसी तरह झूठ भी आम है। हर मैदान में झूठ का एक ख़त्म न होने वाला सिलसिला है। अब चुगली सर्टिफिकेट और चुगली संदे बनाई जा रही है। पैसे देकर इंजीनियर की सनद ले लो, वकालत की सनद ले लो, झूठी सनद तैयार है, झूठे कागजात पर मुलाजमतें इख्तियार की जा रही है। याद रखें, इन तमाम सूरतों में झूठ बोलना, लिखना, बताना सब हराम और सख्त गुनाह। 3 किस्म के अफराद पर क़यामत के दिन अजाब। इसीलिए एक हदीस में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि 3 आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह ताला उनकी तरफ क़यामत के रोज़
नजरे रहमत नहीं फरमाएंगे और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। एक आदमी वह जो हालत सफ़र में है और उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा पानी मौजूद है, दूसरे मुसाफिर को यह पानी देने से इनकार कर देता है, उस शख्स के लिए यह अजाब है। अलबत्ता अगर पानी ज़रूरत के मुताबिक है तो फिर इनकार कर देना जायज़ है, इसमें गुनाह नहीं। दूसरा शख्स जिसको यह अजाब दिया जाएगा, झूठी कसम खाने वाला, वह ताजीर है जो खरीदार को यह कहता है कि मैंने यह चीज़ इतने में खरीदी है और तुम्हें इतने में फ़रोख्त करता हूँ, और उस पर कसम भी खा ले, हालांकि वह जो कीमत खरीदार को बता रहा है उस कीमत पर वह चीज़ नहीं खरीदी। तीसरा शख्स वह है जो एहसान करके जतलाता है, उसको भी यह अजाब होगा कि अल्लाह क़यामत के रोज़ उसकी तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाएंगे और न उससे बातचीत फरमाएंगे और न उसका तज़किया फरमाएंगे, और उसके लिए दर्दनाक अजाब होगा। बाज़ लोगों में एहसान जताने की बड़ी आदत होती है, वह इस गुनाह से बतौर ख़ास बचे। छठी औरत पर अजाब का सबब एहसान जतलाना। छठी औरत में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि वह कुत्ते की शक्ल है और उसके मुँह से आग दाखिल हो रही थी और पाखाने के रास्ते से आग बाहर निकल रही थी, और फरिश्ते जहन्नम के गुर्ज से उसकी पिटाई कर रहे हैं, मार रहे हैं। इसके बारे में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस औरत को यह अजाब दो गुनाहों की वजह से हो रहा है, एक हसद करने की वजह से और दूसरे एहसान जतलाने की वजह से। यह दोनों गुनाह ऐसे हैं जो मर्दों के अंदर भी पाए जा सकते हैं, और मर्द भी हसद करते हैं और एहसान जता सकते हैं, इसलिए इस दर्दनाक अजाब के वह भी मुस्तहिक हो सकते हैं। अगर ख़वातीन इन गुनाहों को करेगी और तौबा नहीं करेगी तो वह भी इस अजाब के अंदर मुब्तला होगी। एहसान जतलाने का मतलब। एहसान जतलाने का मतलब यह है कि हमने किसी के साथ हुस्न सलूक किया, लेकिन जब हमारा मौका आया कि हमारे साथ कोई हमदर्दी करे और कोई एहसान करे, हमारे साथ ताआवुन करे, उस वक्त उस शख्स ने हमारे साथ ताआवुन न किया तो अब फ़ौरन यह एहसान जतला देते हैं कि तुम्हारे मौके पर तो हमने तुम्हारी बड़ी खिदमत की, बहुत काम आए, लेकिन हमारे मौके पर तुमने तोते की तरह आंखें फेर ली। यह है एहसान जतलाना। यह बात ख़वातीन में बहुत पाई जाती है। अजाब का दूसरा सबब हसद करना। इसी तरह आजकल हसद भी इतना पैदा हो गया है कि कोई शख्स दूसरे को खाता नहीं देख सकता, पीता नहीं देख सकता, पहनता नहीं देख सकता, रहता नहीं देख सकता। यह हसद मर्दों में भी पाया जाता है और औरतों में भी पाया जाता है। मसलन किसी के बहुत अच्छे कपड़े देखे तो दिल में हसद पैदा हो रहा है, किसी का अच्छा घर देखा तो दिल में हसद पैदा हो रहा है, किसी के मनसब और ओहदे पर, किसी की खूबसूरती पर, किसी की मालदारी से, किसी की सेहतमंदी से, किसी के हुस्न व जमाल से, किसी के माल व मनाल से, किसी के अहल व अयाल से। गर्ज की जितनी नेमतें दूसरों को हासिल है उनको देख देख कर हसद पैदा हो रहा है। सातवीं औरत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने एक औरत को जहन्नम में देखा, वह अपने पिस्तानों से लटकी हुई थी और उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और उसके हलक में जहन्नम का एक दरख्त के कतरे टपकाए जा रहे थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ किया कि हज़रत उस औरत का क्या जुर्म था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वह दूसरों के बच्चों को अपने खाविंद की इजाज़त के बगैर दूध पिलाती थी, क्योंकि इसमें खाविंद के साथ भी ज़ियादती है कि खाविंद का बच्चा भूखा रहे और चंद टकों की खातिर दूसरों के बच्चे को दूध पिलाए। दूसरा नुकसान यह है कि मुमकिन है कि उसका खाविंद अपने अजीज़ व अकारिब के घरों में अपने बच्चों के रिश्ते करना चाहता हो, लेकिन उसके दूध पिलाने की हुर्मत रज़ात साबित हो जाने से वह रिश्ते नहीं कर सकता। वैसे भी औरत नफली रोज़ा तक खाविंद की इजाज़त के बगैर नहीं रख सकती। आठवीं औरत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक औरत को मैंने जहन्नम में लटकी हुई देखा, उसके हाथ और पाँव उसकी पेशानी के करीब बंधे हुए थे और उस पर सांप और बिच्छू मुसल्लत किए गए थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस औरत का क्या जुर्म था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह अपने खाविंद की इजाज़त के बगैर घर से बाहर निकलती थी
اور حیض و نفاس کا غسل نہیں کرتی تھی۔ آج بازاروں میں عورتوں کے کھلے منہ اور کھلے سر پھرنے کا رواج عروج پر ہے، اور پھر ظلم یہ ہے کہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ ادھر مرد اپنے دفتر ڈیوٹی کے لیے گھر سے نکلا، ادھر گھر کی مالکہ کسی نہ کسی بہانے سے بازار کو گئی یا بغیر خاوند کی اجازت کے کسی پڑوسی کے گھر گئی۔ یہ سب ناجائز و حرام ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص جہاد کے لیے گیا اور اپنی بیوی سے کہہ گیا کہ میرے آنے تک گھر سے نہ نکلنا۔ اس شخص کے جانے کے بعد اس کی عورت کا والد بیمار ہو گیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد کے گھر جانے کی اجازت مانگی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیرے خاوند نے کہا اس کی اطاعت کر۔ اس نے کئی مرتبہ اجازت مانگی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی، یہاں تک کہ اس کا والد فوت ہو گیا اور وہ گھر سے نہ نکلی۔ جب اس کا خاوند واپس آیا تو جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عورت کی خاوند کی اطاعت کی وجہ سے بخشش کر دی، کیونکہ خاوند کو راضی کرنا بہت ضروری ہے، اس پر عورت کے لیے سب کچھ ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت 7 دن تک اپنے خاوند کی خدمت کرے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ 9ویں عورت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اندھی، بہری اور گونگی تھی، آگ کے صندوق میں بند کی ہوئی تھی، اس کا بھیجا اس کے سر سے نکل رہا تھا، اس کی بدبو برس اور زکام والے کی بدبو سے بدتر تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا کیا جرم تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جھوٹ بولتی تھی اور چغل خور تھی، یہ دونوں جرم ایسے ہیں کہ ان سے قوموں کی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ 10ویں عورت، بغیر اجازت گھر سے جانا، یعنی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا، جو ہم نے پیچھے بیان کیا ہے۔ اور 11ویں عورت، خاوند سے بد زبانی، جو خاوند سے بد زبانی کرتی ہے، زبان لڑاتی ہے، اس کا بھی ہم نے پیچھے بیان کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔